Hello everyone. Good evening. I hope I'm audible to you. Okay. So this side Priyanka, and I'll be taking your CS1 subject topics. Okay. So from one of the student, I came to know what are the topics which you have already completed in CS1. And from CS1, I also came to know that you in C++, you have started something in C++. So before we actually get into remaining topics of C++, let's first revise whatever you have done in C++, so that even I'll come to know how much you have done, and आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे. Okay. If you have any queries, then definitely you can ask me on the chat. Unmute करके भी आप कुछ पूछ सकते हो. Okay. So I'll just share my screen. Is my screen visible? Okay. So in your C++, you have tokens and operators. Before that, you have history, control structures, arrays, functions, pointers, strings, classes and objects, member function definition, constructors, and many more topics. Okay. So there are so many topics, but एक बहुत ही basic सा question है मेरा आप लोगों के लिए. आपको language के बारे में क्या पता है? What is a language? Language क्या होती है? Yes. What's a language? Very good. So a language is a way of medium of communication. Yes. So here, so language is a medium of communication. We are using यहाँ पे English, हिंदी, ये दोनों language हम use कर रहे communicate करने के लिए, right? But अभी मुझे अगर communicate करना है हमारे computer system से, मुझे कुछ specific instructions देने हैं computer system को, तो हम क्या use करेंगे? हमें use करना है programming language. So what is a programming language? It is a language which is used to communicate between a computer and a human. Okay, it's a set of instructions which helps to define a particular task. कोई भी एक task हमें perform करना है, so हम programming language से define करेंगे. Okay. Now there are so many types of programming languages, right? C, C++, Java, Python. अभी आप लोग CS12 CS में हो, आप engineering के लिए apply करोगे, तो कितने सारे programming languages आपको सीखने पड़ेंगे, right? So why do we have to learn so many programming languages? एक language सीख के क्यों काम नहीं हो जाता? कोई है जो आंसर कर सकता है अनम्यूट करके? चैट पे लिख सकते हो, दैट्स ओके. यस. इतने सारे लैंग्वेजेस क्यों पढ़ने पड़ते हैं हमें? सी, C++, जावा, पाइथन, PHP. Yes, so every language has its own pros and cons. सबके यूजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है. बट अगर हमें ये इतने सारे लैंग्वेजेस का अगर कैटेगरी पता चल जाए और हमें खुद को एज अ डेवलपर पता हो कि ये टास्क, ये एक फंक्शनैलिटी करने के लिए हमें क्या लैंग्वेज यूज करनी है, तो हमें कितना इजी होगा लैंग्वेज चूज करने के लिए, राइट? एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की लैंग्वेज में ये चलेगा, अच्छे से वर्क करेगा. सो अभी मैं ब्रॉडली डिफाइन करूंगी इतने सारे लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में. तो सबसे पहले कैटेगरी है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग.
तो एज अ नेम से प्रोसीजर ओरिएंटेड, तो इस पे पूरा फोकस है प्रोसीजर वर्ड पे। ओके, सो प्रोसीजर का मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस करती है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन पे। इसका फोकस होता है टास्क, फंक्शंस या प्रोसीजर्स पे, मतलब हमें कैसे हमारा टास्क को कंप्लीट करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते जाओ एंड हमारा टास्क अचीव कर लो, गोल अचीव कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड के फोकस, एंड ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमने क्या देखा, प्रोसीजर ओरिएंटेड focuses on step by step execution, it focus on task functions, it follows a top down approach. Okay, okay. In object oriented, now as the name says, object oriented programming language, so the focus is on the objects. Now ये object word क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड के एंटिटीज। ओके, I'll give you time to write it down. पहले हम ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं इसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहला फोकस है हमारा ऑब्जेक्ट्स पे। ओके, इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। अब ये टॉप डाउन अप्रोच क्या है एंड बॉटम अप अप्रोच क्या है, हम उसका एक एग्जांपल लेंगे। ओके, and the third type of programming language is scripting language. Now scripting language का एक ही लाइन हम यहाँ पे देखेंगे, that it is known as pre-compiled language. We will keep this language aside and our main focus would be to understand difference between procedure oriented language and object oriented language. Okay, now let's take a scenario to understand the difference between these two. So ये एक सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे मुझे अभी यहाँ से एटीएम मशीन जाना है कैश विड्रॉ करने। ठीक है, तो अभी मेरे स्टेप्स क्या होंगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड में फोकस किस पे होता है, स्टेप्स पे होता है, राइट। सो व्हाट आई डू, आई वॉक, आई एंटर माय पिन एंड आई एक्सेप्ट द कैश। ये मेरे बेसिक स्टेप्स है, अग्रीड। अब इस ये हो गया मेरा प्रोसीजर ओरिएंटेड। इसी सेम सिनेरियो को अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस सिनेरियो में कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने एंटिटीज इन्वॉल्व्ड हैं। ओके, तो सबसे पहले इधर एंटिटी आता है एक वो पर्सन जिसको एटीएम जाना है, एंड सेकेंड एंटिटी है वो एटीएम मशीन। अब हमने जब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर लिए, उसके ऊपर बेस करेंगे हम कौन से एंटिटी का क्या फंक्शन है। सो कस्टमर जो एंटिटी है उसका फंक्शन है टू वॉक, टू एंटर पिन एंड टू एक्सेप्ट द कैश। ऑन दी अदर हैंड आपके मितांश आप अनम्यूट हो, एंड आपके एटीएम मशीन का सब ये फंक्शंस हो गया टू वैलिडेट द पिन एंड डिस्पैच द कैश। तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड सेम सिनेरियो जहाँ पे मुझे जाना है एटीएम मशीन या किसी कस्टमर को जाना है एटीएम मशीन कैश विड्रॉ करने, तो वहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या देगा, सिर्फ फोकस है फंक्शन पे, वॉक करना, पिन डालना, कैश एक्सेप्ट करना। ठीक है, बट हमने देखा ही नहीं कि दूसरी एंटिटी के क्या फंक्शंस है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा पूरा फोकस होता है पहले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। ओके, ये इस सिनेरियो में कोई क्वेरी आप लोगों को? Okay. So languages which are used in procedure oriented is C, Fortran, Algo and बहुत सारी language. And languages which are used for object oriented is C++, Java, C Sharp, Python and many more. Okay. So अब हम learn कर रहे हैं, हमारी language है C++. ठीक है. So let us study a bit history about C++. Okay. प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच है उसका हम एक छोटा सा ले लेते हैं। जब हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड में था तो हमारा फोकस क्या था, हमें गोल अचीव करना है। सो हम टारगेट है हमारा गोल, तो सिर्फ स्टेप्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो हम टॉप डाउन अप्रोच मेथड यूज कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड,
सो हमें पहले आइडेंटिफाई करने हैं ग्राउंड लेवल पे कि कितने ऑब्जेक्ट्स है, कितने सारे यूजर्स है, एंटिटीज है, ईच यूजर्स के क्या स्टेप्स होंगे, उसके ऊपर हम अपना गोल अचीव करेंगे. So it is that is why we say that procedure oriented follows top down approach, because हमें सिर्फ फोकस स्टेप्स पे है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फोकस ऑब्जेक्ट्स पे, इसलिए हम बोलते हैं उसको बॉटम अप अप्रोच. पहले आइडेंटिफाई करो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स एंड देन उसके ऊपर हम अपने फंक्शंस या टास्क डिफाइन करेंगे. ओके, नाउ विल सी हिस्ट्री ऑफ C++. Okay, so this language was developed in 1980 by Bertrand Russell, okay, in Bell Laboratories at AT&T's Bell Laboratory. ये बहुत बेसिक हिस्ट्री है, ये आपको कभी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. C++ किसने डेवलप की थी एंड उसका कौन से ईयर में डेवलप हुई थी. ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऑल टुगेदर न्यू एंटिटी है जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, राइट. तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी नॉर्मल फ्रेंच लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज जब हम सीखने जाते हैं तो हमें उसकी बेसिक चीजें तो सब पता होनी चाहिए ना, कि वो क्या ग्रामर यूज कर रहे हैं या कौन से कैरेक्टर्स हम यूज करेंगे. तो टोकन्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटीज है. ओके, सो वेरी गुड विनीत. सो यू रिप्लाइड दैट अल्फाबेट्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे टोकन्स में. सो हम कैरेक्टर सेट्स, कैपिटल ए से स्मॉल, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, ए स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 1, ये सारे टोकन्स हो गए. देन वी हैव few other tokens like keywords, identifiers, data types, variables, constants. हम एक जस्ट वॉक थ्रू करते हैं ये सारे टोकन्स पे. तो सबसे पहला की टोकन है हमारा कीवर्ड. सो एज द नेम से कीवर्ड, कीवर्ड पे एम्फोसिस किस चीज का है, important word, something which is important, which have a predefined meaning. रिजर्व वर्ड्स है हमारे कंपाइलर में कुछ कीवर्ड्स है जो प्री डिफाइंड मीनिंग देते हैं हमें. ओके, कैन एनीवन गिव मी सम एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स. देयर आर 48 कीवर्ड्स इन C++. Yes. Cout is not a keyword. Cout, cin, not a keyword. IOStream, again not a keyword. Break is a keyword, yes. Okay, so int, char, float, void, double, long, class, struct, union, enums, ये सब keywords है. 10 keywords है जो data types के अंदर आएंगे, जो हम अभी आगे देखेंगे. ठीक है, while, if else, ये सारे keywords है. तो आप बोलोगे cout, cin keywords क्यों नहीं है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स है. वी विल कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन जब हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें कंप्लीट करेंगे. द नेक्स्ट टोकन इज दिस स्लाइड शोज अस व्हाट आर द 48 कीवर्ड्स. आपको ये सारा बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है, मेन कीवर्ड्स पता होने चाहिए. थ्रू आउट C++ हम इसमें से मेजर कीवर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर स्क्रीन इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज अ फंक्शन. Now identifiers. Okay, so identifiers क्या होते हैं. Now Priyanka is my name, it's an identity to me. Okay, so वैसे ही अगर हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो उस वेरिएबल को नेम देना पड़ेगा. तो जब हम किसी भी चीज को, कोई भी एंटिटी को नेम देते हैं, वो हमारे लिए आइडेंटिफायर है. ओके, सो कुछ रूल्स के साथ में आता है आइडेंटिफायर्स, दैट आप यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशंस जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कि हमारे वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकती है. वेरिएबल नेम वन वर्ड ही होना चाहिए. एंड उसके बीच में अगर आपको डिजिट लिखना, यू कैन राइट, अंडरस्कोर लिखना, यू कैन राइट, स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हो, बट स्पेस नहीं हो सकती. आपका वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता. इट कैन बी इन अपर केस, लोअर केस, इट इज ओके. कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम. दैट मीन्स अगर मुझे वेरिएबल बनाना है एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज इफ, आई कैन नॉट डू दैट. Yes, we can write charmi_21 like that. We can
Right, definitely that's a right keyword. And \n is not a keyword. It's they are escape sequences. We will come to that point later on. Now the third token is data type. पहला token क्या था हमारा? Keyword. Second token है identifiers. Third token है data types. ये most important टोकन है हमारे C++ का. जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मेजर कंटेंट है आपके पूरा C++ इसमें ही है. ओके, तो सबसे पहला डेटा टाइप है बिल्ट इन डेटा टाइप. वेरी फर्स्ट इज बिल्ट इन. बिल्ट इन मतलब प्राइमरी, बेसिक. उसमें आगे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, वॉइड, डबल, ये सारे बेसिक हमारे डेटा टाइप्स हैं. अब इसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास डिराइव डेटा टाइप. अगर मुझे मोर देन वन इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी किसी एक ही वेरिएबल में, तो हम यूज करेंगे एरेज. अगर हमें एक कैरेक्टर डेटा टाइप में सिंगल कैरेक्टर के अलावा कुछ और यूज करें, तो हम एरेज का दूसरा पार्ट है स्ट्रिंग्स, हम वो यूज करेंगे. देन वी हैव डिराइव्ड डेटा टाइप में फंक्शंस एंड पॉइंटर्स. व्हाट आर फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, विल सी दैट लेटर ऑन. ओके, नाउ बिल्ट इन हो गया, डिराइव डेटा टाइप्स हो गया, बट यूजर वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. यूजर बोलते कि भाई मुझे एक अलग डेटा टाइप चाहिए. तो हमारे डेवलपर ऑफ C++ he came up with an idea. Okay, I'll give you an option that यूजर आपको जो डेटा टाइप बनाना है आपको खुद से बनाओ. तो उसने हमें 4 ऑप्शन दिए: स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनमरेशन. ओके, तो ये चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. और हम C++ में क्या यूज करेंगे? मेजरली C++ में हम क्लास यूज करने वाले. दिस इज देयर इन योर क्वेश्चन. तो हम क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, व्हाई क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हम सारे वो क्वेश्चंस आपके क्लियर करेंगे. ओके, यहाँ तक कोई क्वेरी है? We have completed 3 tokens. Sure. Okay. Now ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बताता है कि जब आप एक डेटा टाइप क्रिएट करते हो आपके प्रोग्राम में, तो वो कितना मेमोरी यूज करता है. ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अब व्हेन यू विल क्रिएट योर ओन एप्लीकेशंस, so people would like to download application from the play store जो कम स्पेस यूज करे, राइट, जिसको कम मेमोरी यूज हो. तो ये डेटा टाइप जो होते हैं वही हमारी मेमोरी स्पेस यूज करेंगे सिस्टम की. सो इन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 32 बिट सिस्टम एंड 64 बिट सिस्टम. तो दोनों में अलग अलग मेमोरी ब्लॉक यूज होता है. यू हैव टू ओनली कीप इन माइंड 32 बिट सिस्टम के बारे में. 64 को जाने दो. 32 के वी विल फोकस. इंटीजर टेक 2 बाइट्स, फ्लोट टेक 4, long 4, double 8, and character takes only 1 byte. Okay, 1 byte of space. The another variable, the another token is variables. Variables का as the name says, variable vary करने वाला, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टोकन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट एज अ नेम सेज, कांस्टेंट स्टेबल है, जिसकी वैल्यू स्टेबल है, फिक्स्ड है. एक बार ही आपने उसको वैल्यू दे दी, आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो. वी डिफाइन कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड कॉन्स्ट, एंड हम ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट इंट साइज 10. ओके, एनी क्वेरी गाइस? ओके, कूल. यहाँ तक जो भी हमने देखा वो हमारे टोकन्स में था. लेट्स रिवाइज. टोकन्स में क्या क्या है? Jay, what's the query? Size is syntax or name of int? It is the memory which integer data type will take. Integer कितना space use करेगा वो हम उसमें store. Int will take 2 bytes, float will take 4 bytes in your memory. Okay. तो हम रिवाइज करते टोकन्स में क्या आया. सबसे पहले हमने देखा कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स which have predefined meaning, important words. सेकेंड, कीवर्ड्स के बाद में देखा हमने आइडेंटिफायर, नेम गिवन, आइडेंटिटी होती, नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, एनीथिंग जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं उसको. थर्ड इज डेटा टाइप. डेटा टाइप क्या होता है? खुद 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं: प्रिमिटिव, प्राइमरी, बेसिक. जो भी आप बोलो, बिल्ट इन, जो बेसिक है. देन हमारे पास डिराइव्ड, जो प्राइमरी से डिराइव किया गया है. थर्ड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो डेवलपर ऑफ C++ टोल्ड फाउंडर के भाई मैंने प्रिमिटिव दे दिया, डिराइव दे दिया, फिर भी यूजर सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुद का डेटा टाइप बनाओ
4 कीवर्ड्स दे दिए उसने, आप इस कीवर्ड्स के जो आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। ओके, आफ्टर डेटा टाइप्स वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट व्हिच विल हैव फिक्स्ड वैल्यूज, ये हमने देखा। ओके, इसके बाद में है न्यू टॉपिक दैट इज योर ऑपरेटर्स। अब आप लोग CS1 के लिए कौन सा टेक्स्ट बुक, सबको आई गेस प्रज्ञास बुक यूज कर रहे हो, राइट? या सो इस बुक में है ना ऑपरेटर्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, प्रॉपर कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं वो सब क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। सो ऑपरेटर्स के लिए I'll help you out with this slide. ओके, सो ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर ऑपरेटर्स? व्हाट डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑपरेटर? Yes, what's your understanding about operator? Yes, जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, सब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन कुछ परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो अभी हमने लिखा a प्लस बी, तो a प्लस बी इज व्हाट इट इज? नथिंग बट प्लस इज एन ऑपरेटर विच इज परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन a एंड b। ओके, सो ये a और b आपके लिए वेरिएबल है, बट ऑपरेटर प्लस के लिए ऑपरैंड्स है। So unary operator takes one operand, binary takes two operand, ternary takes three operand. इसीलिए ये 3 टाइप में है। A है unary one operand, binary two operands, ternary have 3 operands. यहाँ पे कोई क्वेरी? A, B, C, unary, binary, ternary? Okay. So increment decrement operator का सिंबल क्या होता है? प्लस प्लस माइनस माइनस। सो अगर मैंने a प्लस प्लस किया है तो a की वैल्यू हम इंक्रीमेंट करेंगे। वी विल सी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लेटर, प्रॉपर अच्छे से हम उसको देखेंगे। ओके, बाइनरी ऑपरेटर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का सिंबल है परसेंटेज, बट वो परसेंटेज निकालता है या वो कुछ और देता है? इट गिव्स अस व्हाट? डिवीजन गिव्स अस modulus gives us remainder and division gives us quotient. Okay, so अगर एक एग्जांपल ले हम 10 डिवाइड बाय 3, डिवीजन ऑपरेटर यूज किया हमने 10 डिवाइड बाय 3, तो क्या होगा? इट्स एन इंटीजर वैल्यू, राइट? 10 डिवाइड बाय 3, इंट डिवाइड बाय इंट है, तो आपका आंसर फ्लोट में तो आएगा नहीं, आपको आंसर मिलेगा इंटीजर में ही। ओके, तो आपको आंसर आ रहा है 3। क्यों? बिकॉज हमने डिविजन साइन यूज किया। वहीं पे अगर मैंने 10 mod 3 यूज किया, 10% 3, so we will get answer as 1. Okay, because it gives us the remainder. Moving towards second type of binary operators, logical operator. Logical operator क्या होता है? जो हमें हेल्प करता है दो कंडीशन में चेक करना कि ये दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दिस इज लॉजिकल एंड। लॉजिकल और में क्या हो गया? कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हम उसको ट्रू कर देंगे। लॉजिकल नॉट, so what is logical not? If this is not equal to or not great, so not equal to के लिए भी check logical not. Okay, रिलेशनल ऑपरेटर्स में आता है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। सो ये क्या करेगा? टू इक्वल टू साइन क्या काम करता है? सिंगल इक्वल टू क्या करेगा? सिंगल इक्वल टू विल असाइन द वैल्यू। ओके, a इक्वल टू 5, so that is assignment operator. Okay, but then अगर मुझे a is equal to 5, this will check whether the value is 5 or not.
सो बाइनरी में हमने 3 बाइनरी ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक देखा, लॉजिकल देखा, रिलेशनल देखा। यहाँ पे कोई क्वेरीज है? Okay, great. Now third type of operator is ternary operator. Ternary operator takes 3 operands. Okay. ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है to check. It is also known as conditional operators. It is used to check the condition and according to the condition ये true या false करेगा. So the first expression है हमारा, इसका symbol है question mark and colon. जो first symbol है हमारा, वो कंडीशन उसमें जो भी रहेगी एक्सप्रेशन 1 में वो कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो हम सेकेंड एक्सप्रेशन प्रिंट करेंगे, अदरवाइज विल प्रिंट थर्ड एक्सप्रेशन. So here is an example. We have two variables a and b. We have assigned value to a as 10. In b what are we doing? हम लिख रहे हैं अगर a is equal to 1, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एक्सप्रेशन 1 is a is equal to 1, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, राइट? सो जैसे ही फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली थर्ड एक्सप्रेशन पे चला जाएगा, दैट मींस 30 हमारे बी में स्टोर हो जाएगा एंड बी को अगर आप प्रिंट करोगे तो वैल्यू वहां पे 30 आएगी. ओके, यहाँ तक कोई भी क्वेरी गाइस? ओके, if you have your textbooks with you, then एक पेज नंबर 58 प्लीज ओपन कर लो. यू डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक्स? प्रज्ञास वाली बुक नहीं है? निकिता पब्लिकेशन वही है ना? So if you can open that book, can come on page number 58. So we can go through, just walk through the programs एक बारी, then we will continue with other topic. Okay, you are on page number 58. Okay, so अगर आप चेक करोगे तो वहां पे बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, that if you want to print a string on the console. Okay, so we use hash include use करते starting में. Your program starts with void main or int main. To print anything, to give output to the console, we use cout with the Angular operators. And yes, I'll send this picture. And program number 3.1 में कोई query है? Print a string meaning is to print any text on the console. Okay, and by return 0. Okay, do you know void main and int main आप दोनों ही यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको int main यूज करना, right? So void main, whenever we write void means nothing. तो जब हमारा फंक्शन का डेफिनेशन होता है, फंक्शन डेफिनेशन में अगर हम void लिखते हैं तो हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता, बट इफ योर फंक्शन इज रिटर्निंग int, तो मेन फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड तो लिखना पड़ेगा ना, इट हैज टू रिटर्न समथिंग. तो ये किसको रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम ऑन टर्बो सी, एग्जाम्पल अगर आप टर्बो C++ कंपाइलर पे रन कर रहे हो, तो दैट टर्बो सी इज ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम. सो जब आपके दिस इज योर टर्बो सी,
एंड आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम ने इंट लिखा है, इंट मेन, तो इट विल रिटर्न बैक टू द ओएस, ओएस पे रिटर्न करेगा। और अगर आप void लिखते हो तो इट वोंट रिटर्न एनीथिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंपाइलर को रिटर्न होगा, वॉट एवर बी राइट इंट एंड देन रिटर्न एनीथिंग इन फॉर void में, ये कंपाइलर को रिटर्न होगा। ओके, I'll again explain 3.1 and 3.2 programs. Just give me a minute. So guys, I'll be using online this thing compiler so that कोई भी turbo C या कुछ application use करेंगे तो we will be having problem in running that. Can you see this onlinegdb.com? ये मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ मैसेज में। Okay. So if you see, I haven't returned void int main नहीं लिखा, मैंने void main लिखा है। तो जब void main हम लिखेंगे तो हमें return कीवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। So ये सब, can anyone answer me why do we have to include anything in your C and C++ programs? Include क्या काम करता है? IOStream क्या है? Include IOStream. Library which includes keywords. Okay. Okay. So .h stands for header files. Okay. .h stands for header files, and we have many header files with our compilers. C++ compilers में हमारे पास already बहुत सारे header files होते हैं. Now IO stream stands for input output stream. So whatever related to input output, हम इस header file में हमें सारे methods या objects मिल जाएंगे जो हम use करते हैं. ओके, सो दैट इज वाई ये बहुत कंपलसरी स्टेटमेंट है हमें यूज करने के लिए। अगर आप ये नहीं इंक्लूड करोगे तो आप सी आउट सी नहीं यूज कर सकते। ओके, नाउ अभी जो वेरी फर्स्ट 3.1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इट इज राइट अ प्रोग्राम इन C++ दैट प्रिंट्स अ स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। सो हियर आई विल शो यू डायरेक्टली टू राइट सी आउट, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेलकम स्टूडेंट्स सेमीकोलन। सो हमने क्या लिखा है? सी आउट। आपको दिख रहा है ना क्लियरली? ओके, सी आउट लिखा है हमने यहाँ पे, और ये एक ऑपरेटर यूज किया है एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट ये जो ऑपरेटर है ना, ये इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट करेगा आपके कंसोल पे। एंड वेलकम स्टूडेंट्स इज माय स्ट्रिंग, डबल कोट्स में हमने लिखा वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट। एंड हियर आई विल क्लिक ऑन दिस रन बटन। वेलकम स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, इफ यू कैन सी व्हाट प्रिंटेड ओवर हियर। ओके, सो अगर आप लोग ये यूज कर रहे हो ये चीज, तो यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट दिस लैंग्वेज, देयर इज अ ड्रॉप डाउन। सो ये ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट C++ मत करना, C++ टर्बो सी करना, बिकॉज आप जब नॉर्मल C++ सिलेक्ट करोगे देन यू हैव टू राइट टू प्रिंट सी आउट, वी हैव टू राइट std स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यस,
ओके सो द वेरी फर्स्ट 3.1 प्रोग्राम क्लियर है, इसमें कोई क्वेरी है? Someone have asked me DM पे कि 3.1 नहीं समझा था, so I have explained that once again. What is STD, scope resolution operator? STD मतलब standard. STD stands for standard and scope resolution operator हम आगे देखेंगे when we will do classes and objects. So basically we are binding my standard output. Standard output हम bind कर रहे साथ में. Any query guys? Okay. We will move towards next program, that is 3.2. Write a program in C++ to read 3 numbers and compute their average. ये जो प्रोग्राम है ये बेस्ड है हमारे इस पे ऑपरेटर्स के ऊपर. ओके सो हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट इन C++? यस, C++ पे हम इनपुट कैसे लेते हैं? Cin, very good. So what is the syntax? So I need to first write cout, enter 3 numbers. Then need to accept the 3 numbers. But before accepting, do we need to create variables? Variable declaration. So int A, B, C. A, B and C. So हमने एक सीन में तीनों वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लिए विद द हेल्प ऑफ cin, यूजर इनपुट लेकर. ओके नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड प्रिंट द एवरेज. कंप्यूट करना है हमें एवरेज. तो एवरेज कंप्यूट करने के लिए हमें एक और वेरिएबल लगेगा. Now average data type, average can be of decimal point also. So int data type नहीं use करेंगे, we will be using float data type for this. So float avg. आप सारे वेरिएबल्स के लिए फ्लोटिंग डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो. avg is equal to a plus b plus c. Now we need to perform this addition first and then this divide by 3. And last में we will write cout to print this value. Average of 3 numbers is avg variable name. यहाँ पे कोई क्वेरीज है इस प्रोग्राम में? Someone have asked me this, okay ma'am we can write CAB और वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ भी करो. I'll show you क्या होता है इसमें. ये ABC का कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कोई भी सीक्वेंस में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, बट ये जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ये जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जो भी फर्स्ट नंबर यूजर ने एंटर किया है वो फर्स्ट वैल्यू आपके फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा. अगर आपको स्पेसिफिकली आपको कोई नंबर यूजर से लेना है एंड वैल्यू उससे प्रिंट करनी है, तो ये जो भी वेरिएबल नेम है उसका वैल्यू फर्स्ट इनपुट हो गया, बी में जाएगा सेकेंड इनपुट वैल्यू एंड सी में जाएगा थर्ड इनपुटेड वैल्यू. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट दिस थिंग प्रॉपर्ली. Okay, any queries? So let's move towards the next program, 3.3.
Okay, so what's the question for 3.3? Write a program in C++ that describes scope resolution operator. Scope resolution operator क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं मैम, अभी आपने जब ऑपरेटर्स करवाया तो आपने सिर्फ 3 टाइप के ऑपरेटर बताया, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी. There was no scope resolution operator. So where it is going to come? Is it a unary operator, binary operator, ternary operator? कहाँ आएगा बताओ? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ आएगा? यूनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है? ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो हम सिंगल ऑपरेंड के साथ में भी यूज कर सकते हैं एंड दो ऑपरेंड के साथ में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप इस ऑपरेटर को कौन से सिचुएशन में यूज कर रहे हो. ओके, सो अभी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये प्रोग्राम में. ओके, सो इस प्रोग्राम में इसका स्कोप प्रिसिजन ऑपरेटर को यूज करना सिखाया है. सो इफ यू कैन सी आफ्टर हैश इंक्लूड वी हैव रिटर्न directly int variable. Int a is equal to 10. Okay, there is a variable declared and initialized before void main or before int main. Now inside int main we have a variable again with the same name but different value. Okay, now what if I want to print the value of a? Which कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? अगर मैं यहाँ पे सी आउट करती हूँ तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? 15 बाय क्यों 15? बिकॉज वो void main के अंदर लिखा हुआ है एंड ये यहाँ पर इस void main के अंदर का लोकल वेरिएबल है. मेन फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है वो उस वेरिएबल उस पर्टिकुलर फंक्शन के लोकल है. सो इफ आई वांट टू प्रिंट दिस a देन आई हैव टू यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. दिस मींस कि हम आउटसाइड ग्लोबल जो a है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं. दिख रहा है आपको? Okay, so scope resolution operator or when it is used with a variable तो वो global variable को refer कर रहा है. Okay, अब here if I want to change the value of a as 25 तो ये कौन सा variable का value change होगा? Global variable या local variable? Local. Why local? Because we haven't used scope resolution operator. As soon as we write it over here scope resolution operator, it is going to affect the value of global variable a. Okay, so is this program clear? So these were the programs related to operators. Okay, now we will move towards next topic, that is control structures. Now control structures में तीन main important topics आते हैं. सबसे पहले it is conditional statements, second is iterative statement and third is branching statements. ओके, अब तक जो भी हमने तीन प्रोग्राम्स देखे, अगर आप उसका फ्लो देखोगे, हमने हैश इंक्लूड से स्टार्ट किया था, वॉइड मेन के एंड होने तक गए हैं. बट ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना, दे एक्चुअली कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. वेदर टॉप मतलब हैश इंक्लूड से एंड तक जाना है या बीच में मुझे कुछ लाइन स्किप करनी है या मुझे बीच में कुछ लाइन को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है, क्या मुझे करना है, वो ये तीन टाइप के स्टेटमेंट्स पूरा कंट्रोल रखती है. ओके, तो सबसे पहले आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स वी हैव इफ एल्स. सो आप लोगों ने इफ एल्स का सिंटैक्स देखा ही होगा, राइट? इफ in the round bracket we write the condition. If the condition is true, this statement will get executed, else this part will be executed. How many types of if else do we have?
कितने हैं हमें, इफ एल्स के टाइप क्या क्या है? How many types of if else do we have? We have 4 types of if else. एक है सिंपल इफ, जहां पे सिर्फ हमने इफ कंडीशन लिखा है एंड स्टेटमेंट आपका, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स पार्ट नहीं है। ओके, सेकेंड वी हैव सिंपल इफ एल्स, जहाँ पे ये जो आपको सिंटेक्स दिख रहा है सिंपल इफ एल्स का सिंटेक्स है। थर्ड इट इज लैडर इफ एल्स, जहाँ पे इफ एल्स इफ एल्स, एंड फोर्थ वन इज नेस्टेड इफ एल्स, वेयर वी हैव एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स का सेट, इफ एल्स एंड देन एल्स के अंदर अगेन वन मोर इफ एल्स का सेट। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, हमारा क्वेश्चन क्या है एंड किस टाइप का हमें इसमें इफ एल्स यूज करना है। ओके, we will look into few programs of if else. Let's type it out very let's type out the programs. आप लोग भी ये पर्टिकुलर एडिटर यूज कर रहे हो अभी ऑनलाइन? ओके ओके ओके, सो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड वी विल राइट आवर कोड। ओके, so question is write a program to print the entered number is even or odd. ओके, सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारा, हमें यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है एंड चेक करना है whether that number is even or odd. Okay, so here I do not need any global variable. We will create one variable, एक initial declaration देंगे. We will ask the user to enter a particular value. Enter a number. If, okay, we need scene for the variable. Okay, now what will be the condition? If a, why do we have to use modulus operator? Because we need to see अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो वो division by 2 and remainder is 0, then it's an even number, else it's a odd. So even. Do I need to compulsory write curly brackets after if? Very good. So basically आपका ये मैंने कुछ मिस्टेक किया है. Okay, semicolon is missing over here. So enter number 7. It's an odd number. Okay. So even in I guess आप लोगों का if else का कोड क्लियर है. Do you have any query in if else? Okay. Now we will move forward towards the next type of statement, that is iterative statement. Iterative statements मतलब जो statement जो repeat हो रहे हो या loop हो रहे हो बार बार. For example, if I ask you to print word programmatics 10 times, तो आप क्या करोगे? एक वर्ड को आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, सी आउट लिखोगे?
आप क्या करोगे अगर आपको किसी एक वर्ड को 10 टाइम्स या कुछ n नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना है, हम उसको लूप करेंगे, राइट? सो लूप में डालेंगे. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. ओके, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? For the syntax, I'm going to write it down. Initialization, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement. This is my syntax of for loop. Okay. Initialization मतलब हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है टू अ वैल्यू. कंडीशन, कहां तक मेरा लूप चलना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मुझे वैल्यू अपडेट भी करनी है, राइट? कितने टाइम तक मुझे ये लूप को चलाना है, उसके हमें वैल्यू अपडेट भी करनी है. अगर आप ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट नहीं करोगे, देन द लूप विल गो इन इनफाइनाइट लूप. ओके, so syntax of for loop is clear. Any query in that? Yes. Can anyone write syntax for while loop? Initialization, semicolon, while, condition, statement, increment, decrement. This is the right syntax for while loop. Okay. And lastly, do while. Do keyword, the statement, increment, decrement, and then check the condition. Okay. Now my very basic question. Why do we have 3 types of loops? किसी एक लूप से हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? फॉर, वाइल, डू वाइल, इतना सारा क्यों पढ़ना है हमें? यस, टास्क रिक्वायरमेंट, दे वर्क डिफरेंट, बराबर है, लेकिन कैसे जज करें हमें कौन सा लूप कब यूज करना है, वो कैसे आप जज करोगे? सो कैसे जज करना है कौन सा फंक्शन, कौन सा टाइप का लूप कब यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन. फॉर लूप अगर है, सो फोकस, इफ द फोकस इज ऑन नंबर ऑफ इटरेशन, दैट मीन्स हमें n नंबर ऑफ टाइम्स कुछ टास्क परफॉर्म करना है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स पता है, हमें क्वेश्चन में पता है कि n नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, तो हम हमेशा फॉर लूप यूज करेंगे. व्हाइल लूप कब यूज करेंगे? व्हेन इट इज कंडीशनल बेस्ड. ओके, दैट मीन्स कंडीशन है, सबसे पहले मुझे कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है वो नहीं आइडिया है. I do not know how many number of times I have to run particular statement, but I know is what is कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स कि मेरा एक नंबर है, सपोज मुझे नंबर जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, कोई भी नंबर क्यों ना हो, जब तक वो नंबर जीरो नहीं हो जाता तब तक मुझे उसको डिस्कार्ड करते जाना है, वो नंबर को ट्रंकेट करना है, नीड टू डू समथिंग, डिवाइड, सब कुछ कुछ तो भी करना है, टास्क परफॉर्म करना है. तो मुझे पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा लूप चलेगा, वी विल यूज while loop over there. Okay, that means while loop कब? When the focus is on the condition. When do we use for loop? When the focus is on number of iteration, number of times. Here, when the focus on the condition. Now, when do we use do while loop? Same as while loop. That means when the focus is on the condition, but while loop में starting में ही हमारी condition check हो जाती है. अगर मैंने I equals to
5 लिखा है एंड माई कंडीशन इज, वाइल लूप के अंदर माई कंडीशन इज आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 6. सो ये अगर मेरा कंडीशन सबसे पहले चेक हो गया तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन साइड दिस लूप, राइट, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 5 है. सो ये एंट्री कंट्रोल लूप है, हम एंट्री में ही चेकिंग कर रहे हैं कंडीशन. ओके, एंड डू वाइल में अगर आपका इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स टू 5 हो और आप इधर ये कंडीशन चेक करते हो तो भी एटलीस्ट वंस, इवन इफ योर कंडीशन बीइंग फॉल्स, आप एटलीस्ट वंस इस लूप में आओगे एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल समझा? कोई क्वेरी है यहाँ पे वाइल एंड डू वाइल में? If the question is to write difference between while and do while for 2 marks, will you be able to write it? सबसे important point, never miss out syntax. कोई भी क्वेश्चन आया उसमें सिंटेक्स यू हैव टू राइट इट डाउन, एंड सिंटेक्स में ये सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वाइल, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट पूरा लिखना है, और अपडेट. ये ऐसे आपको तीनों चीजें लिखनी है. इट कैन बी आइदर इंक्रीमेंटिंग ऑफ अ वैल्यू, डिक्रीमेंटिंग, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा बट कुछ और हम परफॉर्म करें जिससे हमारी वैल्यू अपडेट हो रही हो. ठीक है, तो एक वाइल एंड डू वाइल का डिफरेंस में सबसे पहले आप सिंटेक्स डिफर कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो दैट there is a semicolon after while in do while, there is no semicolon in while, right? Third is while is an entry control loop, do while is an exit control loop. So 3 points हमने ऐसे जॉट डाउन कर लिए, राइट? और कोई क्वेरीज है while and do while में? Let's see what we have in this book. Yes, you can write down जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है वो भी आप लिख सकते हो. Okay. Increment, decrement is plus, plus, minus, minus, and update is suppose I am doing other than increment, decrement, I am performing n is equal to n divided by 10. This is what I am performing. तो यहाँ पे मैं मेरी n वेरिएबल जो कंडीशन बेस्ड वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मैं अपडेट कर रही हूँ. ओके, तो क्लियर है? कोई डाउट है इसके अलावा? यस बच्चा लोग, कोई क्वेरीज है? Okay, so let us see a program. पेज नंबर 65 पे आ जाओ, प्रोग्राम 3.5. खाली क्वेश्चन हम रीड करेंगे, कोड नहीं देखेंगे वहां से. ओके, क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. ओके, क्वेश्चन है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. सपोज 100 हटा दो, लिखो फर्स्ट n नेचुरल नंबर. n नेचुरल नंबर है मतलब मुझे n यूजर से लेना है, मुझे सम करना है, प्लस करना है मल्टीपल टाइम्स. कितनी टाइम? n टाइम्स करना है. क्वेश्चन में दिया है n टाइम्स, यानी कि कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर लूप. वेरी गुड. सो यहाँ पे आ जाते हैं हम. लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल इंट n, सी आउट, एंटर अ नंबर. फॉर लूप में हम int i इज इक्वल टू 1. कंडीशन क्या है मेरी? मुझे कब तक ऐड करना है? जब तक हम ये जो भी सीन में जो भी नंबर एक्सेप्ट नहीं कर देते यूजर से वहां तक. इट कैन बी, अगर आप टेक्स्ट बुक का देख रहे हो तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हो. फर्स्ट n नेचुरल नंबर आया तो आपको यहाँ पे n लिखना है. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आया, जो भी नंबर अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप वो वहां पे रन कर सकते हो.
and increment decrement is I plus plus. Okay, now we have to also create a sum variable and initialize that value to 0. Here we will write sum is equal to sum plus I. Now why sum plus I, sum plus n क्यों नहीं? कोई आंसर कर सकता है सम प्लस आई क्यों किया हमने? एज आई इज द वेरिएबल जो हमारे लूप में जा रहा है, आई है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड n तक जा रहा है, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, और हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है. आउटसाइड द लूप हम यहाँ पे सिर्फ सी आउट कर देंगे सम का वैल्यू. विल रन दिस कोड, एंटर नंबर से 5 और आंसर आ गया हमें 15 बिकॉज 1 plus 2 plus 3 till 5 it is 15. Any queries over here? Shall we move ahead? Let's see the next program. यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना हम कोड कैसे रन कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? ओके, सो द नेक्स्ट ओके, सम इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? सम मैंने बाद में दिस क्वेश्चन, ये लाइन क्यों लिखी है? बिकॉज जब आप इनिशियली फर्स्ट टाइम, अच्छा ऐसे जब भी कोई प्रोग्राम्स आते हैं ना, सो हमें कंपल्सरीली ड्राई रन करना होता है. ओके, नाउ व्हाट इज ड्राई रन? Just give me a minute. I'll show you how to do dry run. Okay. So dry run is when we so हमारे इसमें क्या लिखा था? सम वेरिएबल एक है. ओके, सम वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0. And then which other variable we have? We have I variable, and the initial value of I variable is 1. And another variable is n, which is unknown. So let's take n as 5. User ने enter किया है 5. So जब I की value 1 है and condition is I is less than equal to 5, the condition is true. So अभी हम क्या करेंगे? Sum equals to sum plus 1. So sum equals to sum plus 1 जैसे ही करते, I जैसे लिखा है ये statement. So I का value क्या है? 1 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? It will be replaced with this, और सम की वैल्यू 0 से रिप्लेस हो जाएगी. जो भी नया वैल्यू बनेगा वो वापस हम इधर रिप्लेस कर देंगे. न्यू वैल्यू इज 1. आपको स्क्रीन दिख रहा है राइट? ठीक है. देन नेक्स्ट आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी आई विल बिकम 2. अगेन 2 इज लेस देन इक्वल टू 5. तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 जो भी आंसर आया वो यहाँ पे स्टोर हो गया 3 इधर. अगेन नेक्स्ट इटरेशन के आई प्लस प्लस होगा, आई विल बिकम 3. सम की वैल्यू क्या है? सम 3 है, आई भी बन गया 3.
3 + 3 6 हो गया, 6 हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, I ++ हुआ, I will become 4, 4 is less than equal to 5, so हम आगे जाएंगे, 6 + 4, the value is 10. Yes, this is known as trial and error. ड्राई रन भी बोलते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही I++ होगा, I will become 5. Now 5 is less than equal to 5, so अभी हम चेंज कर देंगे 10 and 5. 10 + 5 is 15. I will become 6, but जैसे 6 हुआ, my condition becomes false, will come out of the loop. Okay, लूप से बाहर आके हमने वैल्यू प्रिंट कर दिया सम. Any queries over here? Okay, good. एक 3.6 वाला कोड है, हम एक बार देख लेते हैं. So question क्या है? Write a program to find factorial of a given number using function. But we haven't done functions yet, so we will not use it. हम without function वो वाला कोड देखेंगे, ठीक है? Functions, are you aware about functions? आता है आप लोग को function? सर ने करवाया functions? Yes or no? Do you know functions? ओके, सो अभी हम एक काम करते हैं, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम विदाउट फंक्शंस करेंगे, एंड देन जब हम फंक्शंस रिवाइज करेंगे उसके बाद में हम यही सेम प्रोग्राम विद फंक्शंस करेंगे. ओके, सो फैक्टोरियल, write a program to print factorial of a number. This is our question. सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है? अगर हमारा नंबर है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 120. कैसे आया? बिकॉज हमने 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? हम ऐसे इसका फैक्टोरियल निकालते हैं. कैन आई ऑल्सो राइट दिस वे? 1 into 2 into 3 into 4 into 5. yes, right? so मेरे पास तो आंसर रेडी है, इधर ही है. इसको हम कमेंट आउट करते हैं. ये मेरा आई वेरिएबल है जो 1 से स्टार्ट होगा. इट विल गो टिल माय n, वट एवर n यूजर ने जब डाला है, जो उसका नंबर हमें चेक करना है. सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मुझे भी सम इक्वल्स टू सम प्लस 1 के जगह हमें एक नया वेरिएबल बनाना है, फैक्ट. और अगर अब मैं इसको फैक्ट को 0 रखूंगी, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम 0. सो अभी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक इट टू 1, so that when the first time I'm going to multiply the value of fact with I, then I get 1 into 1 is 1. तो यहाँ पे स्टोर हो गया. Then I plus plus होगा, I will become 2. 1 into 2, 2 स्टोर हो जाएगा फैक्ट में. 2 into 3, 6. 6 into 4, 24. 24 into 5, 120. And last में हम यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, 120. So using without using functions, clear है? ओके, फंक्शंस वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं. अप टिल नाउ जो भी हमने किया है उसमें किसी भी टॉपिक में कोई क्वेरीज हैं? एनी टॉपिक, बीट ऑपरेटर्स या इफ एल्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, किसी में भी? डू यू वांट एनी क्वेश्चन व्हिच वी शुड बी ट्राइंग ओवर हियर? कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमें ट्राई आउट करना है इधर? ओके, सो यहाँ तक एवरीथिंग इज गुड टू गो, राइट? ओके, सो अभी हम एक नया टॉपिक लेते हैं. we will start with the, yes, I'll be sharing this notes ppt आपके साथ में, ये मैं शेयर कर दूंगी. हम एक न्यू टॉपिक ले रहे हैं. ओके, अच्छा ठीक है, चलो एक प्रोग्राम ले लेते हैं, नया टॉपिक नहीं.
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। क्या होती है फिबोनाची सीरीज? सुना है फिबोनाची सीरीज के बारे में कि नहीं? ओके, बहुत मिक्स्ड आंसर है। लेट्स सी क्या होता है फिबोनाची सीरीज। सो ये सीरीज जो है वो स्टार्ट होता है 0 एंड 1 से। ओके, एंड नाउ जो प्रीवियस टू नंबर्स होते हैं ना, उसका एडिशन परफॉर्म करके नया टर्म निकलता है। ठीक है, तो 0 प्लस 1 इज 1। नाउ प्रीवियस टू नंबर्स क्या हो गए हमारे लिए? 1 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, and so on, infinite. Okay, तो ये सीरीज हमें प्रिंट करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? क्या हम ये इनफाइनाइट प्रिंट कर सकते हैं? नो, वी नीड n। स्टॉप करने के लिए वी नीड n। कहां तक प्रिंट करना है? दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए? ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7। एज ऑफ नाउ हम देख रहे 7 एलिमेंट्स है फिबोनाची सीरीज के। ठीक है, एंटर नंबर मतलब एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर फिबोनाची सीरीज। कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए? ओके, इसके आगे क्या होगा? कैसे लूप चलाएंगे? हमें क्या करना है? अगर मैं सपोज मेरे ए वेरिएबल में 0 को स्टोर करती हूँ, बी वेरिएबल में 1 स्टोर करूंगी, देन आई कैन राइट c equals to a plus b. Yes. Now to find the next variable, shall I write this way? B plus c, d is equal to b plus c. Then again e equals to c plus d, f equals to d plus e, and so on so on. कितने सारे वेरिएबल्स हम क्रिएट करें? सबसे पहले n क्या होगा यूजर से, वही हमें नहीं पता। a, n नहीं पता हमें। b, हम वेरिएबल मल्टीपल डायनामिकली कैसे क्रिएट करेंगे? है ना? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा इधर? फॉर लूप, वेरी गुड, फॉर लूप करना है। क्यों? पहले तो n पता है, कितने टाइम्स चलाना है वो पता है। क्या रिपीट कर रहे हैं हम 3 टास्क रिपीट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमने किया एडिशन, एंड सेकंड 2 टास्क ये हमने वैल्यू असाइन की टू a b and c वेरिएबल्स ओनली, स्टोरिंग। ये जो स्वैपिंग है हो रहा है ना, ये हम चीज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, so we will create our variables int a as 0, b as 1। ठीक है, हमारा for loop स्टार्ट होगा 0 and 1 से। we have to create another variable, c variable। सबसे पहले हम c is equal to a plus b करेंगे। ओके, देन c आउट करेंगे। जो c में वैल्यू बनी वो तो हमें प्रिंट तो करना ही पड़ेगा ना, बिना प्रिंट करे हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? ठीक है, बिकॉज मेरी सीरीज में क्या हो रहा है, पहले प्रिंट होते जा रहा है, एवरी टाइम लूप में प्रिंट होती जा रही है वैल्यू, एंड आफ्टर वैल्यू प्रिंट होने के बाद में मुझे सेम लाइन में ही प्रिंट कर रहे हैं दूसरे वैल्यूज। तो हमने बैकस्लैश टी डाल दिया, बैकस्लैश टी स्टैंड फॉर टैब स्पेस, कुछ स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? इसके बाद में हमें वैल्यू स्वैप करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कैसे स्वैप करेंगे? a equals to b and b equals to c। ए वेरिएबल में जो भी 0 था वो मुझे अभी हटाना है, उसकी वैल्यू 1 कर देनी है। सी वेरिएबल में हम नया वैल्यू, तो सॉरी, जो बी वेरिएबल वैल्यू थी वो हमने सी वेरिएबल को असाइन, सी से असाइन कर दी। समझा? सो बट अभी भी अगर आप बोलते हो सीरीज आपकी 0 1 से स्टार्ट होती है, तो 0 एंड 1 तो प्रिंट हुआ ही नहीं फॉर लूप में जाने के पहले।
प्रिंट हुआ है क्या 0 and 1? नहीं. So before going into the loop, we will write cout, and either we can print the value of the variables, or we can just write cout 0 \t 1 \t. Okay. So I'll comment this out and we will follow this thing. 0 1 को हमने directly print कर दिया. Now मैंने n लिखा था 5, तो लूप तो चलेगा 5 टाइम्स. तो 0 1 तो पहले प्रिंट हो गए. 0 1 भी तो फिबोनाची सीरीज का ही पार्ट है ना. तो टोटल एलिमेंट्स कितने दिखेंगे अभी? 7 एलिमेंट्स दिखेंगे हमें. तो वो तो रॉन्ग हो गया. हमें लूप को स्टॉप करना है. So I will go till -2, n -2. Okay. So this becomes my proper Fibonacci series का program. Let's run this code. Let's enter 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं फिबोनाची सीरीज के फॉर्मेट में. ओके. कोई और क्वेरीज है यहाँ पे? Yeah, so here's the code. सबसे पहले we'll start with IOStream. इंक्लूड करना पड़ेगा. You can write void main or int main. It's okay if you're writing int main. Compulsory before closing the curly bracket of main, हमें return 0 integer लिखना है. ये क्यों लिखा है a equals to b and b equals to c? Because जो old value है a वेरिएबल में 0, अब मुझे उसको चेंज करना है. जब हमने 0 1 लिख दिया, सो अभी 0 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया. अब मुझे एडिशन 1 and 1 का करना है, राइट? तो अभी हम a में असाइन करेंगे b का वैल्यू, b में असाइन करेंगे c का वैल्यू. ओके, एनी डाउट्स? ओके, सो we will wind up for today. In the next class, we'll start with arrays and functions. Okay. आप लोगों के लिए जो भी हमने प्रोग्राम्स यहाँ पे किए हैं, so in this online GDB there's an option of saving the code. So सेव करने के लिए you have to log in either by Google Gmail ID से आप लॉग इन कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आपको जो माई प्रोजेक्ट्स है ना, इसके अंदर सारे प्रोग्राम आपके सेव होते जाएंगे. सो एक प्रॉपर क्वेश्चन नेम दे सकते हो. 1 डॉट आपने जो भी परफॉर्म किया है, फैक्टोरियल किया है, फिबोनाची सीरीज की, जो भी कोड लिखा है आप वहां पे फाइल नेम दे दो. सो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी सारा कोड आपके पास रहेगा. Yes, Turbo C, C++ भी preferred है. Anyone, this is preferred. You can use any of the compilers. Any queries? I'll share the notes with you, जो भी हमने आज कवर किया है उसके बारे में. Okay? रिविजन करना नेक्स्ट क्लास के पहले. बाय बाय.